Okay, so now we'll take up flexible exchange rate and perfect capital mobility. ठीक है. So till now we discussed कि fixed exchange rate में central bank का क्या role होता है, but now suppose exchange rates are fully flexible. ठीक है. And this means that central bank can no longer intervene. Central bank is no longer going to intervene, right? So what is going to happen in this case? Exchange rate कैसे adjust होता है when we're talking about flexible exchange rate? So exchange rates adjust automatically through market forces. We know that exchange rate, if it is flexible, वो market forces के through, naturally through the forces of demand and supply, my exchange rates are determined, right? So how do we achieve balance of payment under flexible rates, right? So we say that flexible exchange rate under flexible exchange rate, balance of payment must always equal zero. Balance of payment must always equal zero. Now what does this mean? इसका क्या मतलब है? Why should this happen? कि जब मेरे पास फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट हो, वाई शुड इट बी कि मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है दैट मस्ट ऑलवेज बी जीरो? दिस हैपन्स बिकॉज विदाउट सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन, अगर सेंट्रल बैंक इंटरवीन नहीं करती, कोई भी डेफिसिट का केस, डेफिसिट मीन्स कैपिटल आउटफ्लो, या कोई भी सरप्लस का केस विच मीन्स कैपिटल इनफ्लो, कोई भी डेफिसिट या सरप्लस का केस जो होता है, इट ऑटोमेटिकली चेंजेस एक्सचेंज रेट. This automatically changes exchange rate, like we had seen previously also, exchange rate पे pressure आता है, but central bank used to intervene in case of fixed exchange rate, right? So exchange rate must automatically change. It automatically changes, any deficit or surplus automatically changes exchange rate until balance is restored. ठीक है, तो eventually we always land up that मेरा balance of payment जो होगा वो zero होगा. ठीक है, तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि अगर मेरे पास एक एग्जाम्पल में मैं ले लूँ दैट मेरे पास करंट अकाउंट डेफिसिट है. आई हैव अ डेफिसिट इन माई करंट अकाउंट. ठीक है, जस्ट रिमेंबर करंट अकाउंट में क्या कंपोनेंट्स आते हैं, ये हमने डिस्कस किया है, राइट? सो ट्राई टू रिकॉल दैट. ओके, सो लेट्स सपोज करंट अकाउंट डेफिसिट है मेरे पास एंड मैं इसको -100 ले लेती हूँ. ठीक है, एंड लेट्स से कि उसी टाइम क्या हुआ कि आई रिसीव अ कैपिटल इनफ्लो. ठीक है, कैपिटल इनफ्लो हुआ एंड कैपिटल इनफ्लो भी जो है वो 100+ का है. ठीक है, तो इस केस में मेरे बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या होगा, क्योंकि मेरे पास एक केस में मेरे पास करंट अकाउंट डेफिसिट था ऑफ -100 एंड देन आई हैव कैपिटल इनफ्लो ऑफ +100. तो दीज कैंसिल आउट ईच अदर एंड माई बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इक्वल टू जीरो. सो एवरीथिंग बैलेंसेस थ्रू प्राइवेट फ्लोज ओनली, राइट? So this is a massive change because now this is huge because see, in under flexible exchange rate, central bank is free again, right? Central bank has got its freedom. Central bank is free because central bank can now independently pursue monetary policy, right? Because it no longer has any obligation to defend exchange rate, right? So central bank is free. Balance of payment can be zero. रुपी पे exchange rate pressure apply किया जा सकता है and central bank is free, right? So इस केस में now monetary policy, if I want to pursue a monetary policy under flexible exchange rate, I can do that, right? RBI can increase money supply if it wants to. It can reduce interest rate because of course if it increases money supply, interest rate is going to fall. ठीक है, तो central bank can do all of this without being forced to reverse policy. So now there is no such thing as policy reversal जैसा हम fixed exchange rate में पहले देख रहे थे, right? So यहाँ पे exchange rate has a huge role to play, right? So Dornbusch also says this, that exchange rate affects aggregate demand. ठीक है, so Dornbusch mentions this, that exchange rate affects aggregate demand. अब ये कैसे होता है? ठीक है, this is what we are going to discuss, right? So let us take a depreciation example. ठीक है, so suppose initially $1 is equal to ₹80. ठीक है, and then rupee depreciates. ठीक है, depreciation हुआ and then it happens so that exchange rate of let's say $1 is ₹90. तो हम depreciation का केस देख रहे हैं अभी. We are looking at depreciation. Now what happens? Flexible exchange rate, I just remember that, right? So Indian goods become cheaper internationally, right? Because depreciation hai, so we can export more. Because for foreigners के लिए क्या होगा? They can buy more of our stuff, right? So हमारे goods उनके लिए cheap हैं. They can buy more of our stuff, right? So export is going to increase. तो अगर initially एक shirt था that costed let's say ₹800, right? तो अर्लियर किसी एक फॉरेन बायर को कितना देना पड़ेगा? क्योंकि देखो ध्यान से, क्योंकि $1 ₹80 के बराबर है,
और शर्ट 800 रुपीज़ की है, दिस मीन्स कि एक फॉरेनर कैन बाय दिस एट $10, है ना, $10 में खरीद सकते हैं। बट नाउ दिस सेम शर्ट इज गोइंग टू लेट्स से कॉस्ट द फॉरेनर $9 ओनली। अब ये $9 में ही खरीद सकता है ना। तो इसका मतलब है कि क्योंकि उनको हमारे गुड्स चीप पड़ेंगे, तो हमारा जो एक्सपोर्ट है दैट इज गोइंग टू राइज, एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा एंड एक्सपोर्ट इज गोइंग टू राइज। नाउ वी ऑल नो जब एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा तो मेरे नेट एक्सपोर्ट के कंपोनेंट पे कैसे फर्क पड़ेगा, नेट एक्सपोर्ट इज गोइंग टू इंक्रीज बिकॉज माई एक्सपोर्ट इज गोइंग टू इंक्रीज। सो नेट एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है। एंड डू वी रिमेंबर दैट जीडीपी से नहीं तो इफ वी टेक फ्रॉम आईएस कर्व आइडेंटिटी ऑल्सो, और okay, let's take it from GDP only. GDP is the sum of consumption, investment, government spending and net export, right? So अगर मेरा net export का component increase होता है, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा aggregate demand is going to increase, my aggregate demand is going to increase, and IS curve identity भी हमने पहले वीडियोस में पढ़ी है, so my IS curve is going to shift to the right, क्योंकि मेरा नेट एक्सपोर्ट का कंपोनेंट इंक्रीज हुआ है, माई आई एस कर्व विच इज माई गुड्स मार्केट कर्व इज गोइंग टू शिफ्ट टू द राइट। ठीक है, तो जब ऐसा होता है कि मेरे पास डेप्रिसिएशन का केस है एंड माई एक्सपोर्ट्स आर गोइंग टू इंक्रीज, माई आई एस कर्व इज गोइंग टू शिफ्ट टू द राइट, राइट। सो and depreciation will do the opposite. I'll just quickly explain depreciation में क्या होगा if my rupee is going to sorry appreciation में क्या होगा, appreciation will do the opposite, if rupee is going to appreciate then जो मेरे Indian goods हैं that will get more expensive for foreigners, right, and मेरे exports जो हैं वो fall हो जाएंगे and IS will then shift लेफ्ट, आई एस तब लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, राइट। सो वी कैन अंडरस्टैंड द इंटायर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, राइट। तभी हम कह रहे हैं कि जो मेरा एक्सचेंज रेट है दिस अफेक्ट्स माई एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि क्या मेरा एक्सचेंज रेट रहता है उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि मेरा आई एस राइट शिफ्ट होगा लेफ्ट शिफ्ट होगा, वेदर माई ए डी इज गोइंग टू इंक्रीज और माई ए डी इज गोइंग टू डिक्रीज, राइट। सो how does this adjustment mechanism work? So let's say that जो मेरा domestic interest rate है this is greater than the world interest rate, ठीक है। so क्या हुआ, capital inflow होने वाला है क्योंकि मेरा डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, सो कैपिटल इनफ्लो हम देखेंगे। कैपिटल इनफ्लो मीन्स दैट माई करेंसी इज गोइंग टू अप्रिशिएट, है ना, कैपिटल इनफ्लो मीन्स माई करेंसी इज गोइंग टू अप्रिशिएट, एंड जब करेंसी मेरी अप्रिशिएट होगी तो उसके बाद वी कैन अलाउ अप्रिसिएशन, राइट, बिकॉज हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मॉडल देख रहे हैं। तो करेंसी अप्रिसिएशन मीन्स दैट माई करेंसी हैज़ बिकम एक्सपेंसिव, सो मेरे एक्सपोर्ट्स जो हैं दैट आर गोइंग टू फॉल। वी नो दैट एक्सपोर्ट्स फॉल होने का मतलब है कि हमारे डिमांड भी फॉल हो जाएगी क्योंकि एक्सपोर्ट्स ही नहीं हो रहे, तो माई डिमांड इज गोइंग टू फॉल, एंड डिमांड फॉल होने का मतलब है दैट माई आई एस इज गोइंग टू शिफ्ट टू द लेफ्ट, मेरा आई एस कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट। एंड सेम हम अगर ऑपोजिट केस के लिए देखें कि व्हाट इफ वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो इस केस में मेरे पास क्या होगा, कैपिटल आउटफ्लो होगा, है ना, पैसा बाहर जाएगा, कैपिटल आउटफ्लो होगा तो रूपी पे एक्सचेंज रेट प्रेशर पड़ेगा एंड माई रूपी इज़ गोइंग टू डेप्रिशिएट। जब रूपी डेप्रिशिएट होगी तो मेरे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, जैसे हमने देखा क्योंकि हमारी करेंसी चीप है, हमारे गुड्स चीप हैं फॉर फॉरेनर्स, तो मेरे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। एक्सपोर्ट्स बढ़ने का मतलब है माई डिमांड इज़ गोइंग टू इंक्रीज, एंड जब मेरा डिमांड बढ़ेगा दिस मीन्स दैट माई आई एस इज़ गोइंग टू शिफ्ट टू द राइट। सो अब हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर एक्सचेंज रेट जो है, एक्सचेंज रेट इटसेल्फ बिकम्स अ मैकेनिज्म, राइट। एक्सचेंज रेट जो है वो खुद ही एडजस्टमेंट मैकेनिज्म खुद ही वो बन जाता है, ठीक है। तो ये हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। सो वी कैन से हियर कि जब हमारे पास फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है, व्हेन वी हैव फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में हमने देख लिया ऑलरेडी कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में माई मॉनेटरी पॉलिसी, जो मेरा मॉनेटरी पॉलिसी है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में मेरा मॉनेटरी पॉलिसी, दिस इज इफेक्टिव, दिस इज पावरफुल, मॉनेटरी पॉलिसी इज इफेक्टिव, मॉनेटरी पॉलिसी इज पावरफुल, वी कैन परस्यू एन इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। और एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट से ही हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे डिफरेंसेस हम देख सकते हैं, राइट। सो नाउ what is real disturbance, because our book mentions this that real disturbances कैसे affect करते हैं इकोनॉमी को, so what are real disturbances, right? सो इफ वी लुक एट इट, डिस्टर्बेंस का मतलब है एक शॉक, राइट, डिस्टर्बेंसेस मीन्स शॉक्स इन इकोनॉमी, राइट। और शॉक से क्या अफेक्ट हो सकता है, अगर कभी भी शॉक होगा इकोनॉमी में तो व्हाट आर द थिंग्स दैट आर गोइंग टू चेंज। शॉक का मतलब है दैट डिमांड कैन चेंज, राइट, डिमांड कैन बी अफेक्टेड, गुड्स की जो डिमांड है
रियल डिस्टर्बेंसेस पड़ रहा है ना, तो गुड्स की जो डिमांड है वो चेंज हो सकती है, प्रोडक्शन पे भी शॉक का इफेक्ट हो सकता है, राइट, एक्सपोर्ट्स पे इफेक्ट हो सकता है ना, क्योंकि डिमांड पे इफेक्ट होगा तो ऑफ कोर्स इट कैन लीड टू एन इफेक्ट ऑन एक्सपोर्ट्स एज वेल, एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे भी हो सकता है, क्योंकि देन गवर्नमेंट विल हैव टू डिसाइड हाउ टू स्पेंड, हाउ टू नॉट स्पेंड, राइट। बट शॉक का कभी भी इम्पैक्ट जो है वो हम मनी सप्लाई पे नहीं देखेंगे। Shock का impact we will not see on money supply. Now why so? Because let's take an example कि foreign countries को ना suddenly they want more of Indian goods, right? They want more of Indian goods, और क्योंकि उनको ज़्यादा Indian goods चाहिए तो government suddenly increases infrastructure spending. Government क्या करती है कि बोलती है कि अब हम infrastructure पे ज़्यादा से ज़्यादा spend करेंगे because हमारी जो Indian goods की demand है foreign में वो ज़्यादा है, तो infrastructure spending suddenly increases. जब ऐसा होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग अचानक से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, नाउ दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ रियल डिमांड शॉक। ये क्या है? दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज रियल डिमांड शॉक। तो इसका ही यही होते हैं रियल डिस्टर्बेंसेस, दीज आर रियल डिस्टर्बेंसेस, दीज आर शॉक्स, एंड दिस वाज अ टर्मिनोलॉजी मेंशन्ड इन आवर बुक, सो आई थॉट दिस इज इंपॉर्टेंट टू डिस्कस कि रियल डिमांड शॉक होता क्या है। सो रियल डिमांड, जब रियल डिस्टर्बेंसेस होते हैं इकोनॉमी में तो एक्सपोर्ट्स कैन सडनली इंक्रीज, राइट, फॉरेन डिमांड इंक्रीज हो सकता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैन इंक्रीज आउट ऑफ द ब्लू। सो इन चीज़ों से हमें एक क्वेश्चन आंसर ये करना है कि जब देखो मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग अचानक से इंक्रीज हुआ है, सो दिस इज अ रियल डिमांड शॉक, बट द क्वेश्चन दैट वी हैव टू आस्क कि क्या इससे मेरा आउटपुट परमानेंटली इंक्रीज होगा? इज माई आउटपुट गोइंग टू परमानेंटली इंक्रीज? एंड दिस इज a question that we will have to ponder upon and we'll have to answer कि क्या मेरा output permanent increase होता है due to these shocks that we've been seeing, right? Let us take up increase in export demand. What are we going to take up? We are going to take up increase in export demand. Okay. अब इसका क्या मतलब है? इंक्रीज इन एक्सपोर्ट डिमांड। सो इनिशियली हमारे पास इक्विलिब्रियम था हमारे आई एस और एल एम कर्व में, यहाँ पे मेरा आई एस कर्व है, दिस इज माई एल एम कर्व। इनिशियली इक्विलिब्रियम था, वी वर एट पॉइंट ई, राइट। सो इंडिया स्टार्ट्स फ्रॉम दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस जब हम इक्विलिब्रियम से स्टार्ट करते हैं और फिर क्या होता है? सो एवरीथिंग इज बैलेंस्ड एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम में जब हमारे पास इक्विलिब्रियम होता है तो सब कुछ बैलेंस्ड होता है, माई गुड्स मार्केट इज बैलेंस्ड, माई मनी मार्केट इज बैलेंस्ड, एंड मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स भी बैलेंस्ड है ना। हमने देखा था बीपी कर्व जो है मेरा हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट जो होता है वो वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट के बराबर होता है, हमने ये भी देखा है। तो ये सारी कंडीशंस जो होती हैं ये इक्विलिब्रियम की होती हैं, एंड वी नो ऑल ऑफ दीज। अब सबसे पहला कि क्योंकि हम शॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं एंड रियल डिस्टर्बेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो लेट्स टेक अप दैट व्हाट हैपेंस अगर मेरा फॉरेन डिमांड, अभी हम इक्विलिब्रियम में है, राइट, तो वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। सो मेरा फॉरेन डिमांड सडनली increases, right, foreign demand increases, so suddenly global demand for let's say Indian products बढ़ जाता है। तो अगर पहले लेट्स से 500 बिलियन की डिमांड थी, ठीक है, और 500 बिलियन हम एक्सपोर्ट करते थे क्योंकि उतनी ही डिमांड थी, तो लेट्स से ये इंक्रीज होकर हो जाता है 700 बिलियन, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट डिमांड भी बढ़ेगा, क्योंकि फॉरेन डिमांड बढ़ा है तो हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो हमारा 500 बिलियन हो जाता है 700 बिलियन, ठीक है। तो फॉरेन डिमांड कितने से इंक्रीज हुई है? फॉरेन डिमांड इंक्रीज हुई है रुपीज 200 बिलियन से, 200 बिलियन से फॉरेन डिमांड इंक्रीज हुई है। तो गुड्स मार्केट को क्या होगा इस केस में? गुड्स मार्केट को क्या होगा? डिमांड जो है दैट इज ग्रेटर देन सप्लाई इन द गुड्स मार्केट, राइट। गुड्स मार्केट में जो मेरा डिमांड है दैट इज ग्रेटर देन द सप्लाई, तो इंडियन फर्म सडनली आर रिसीविंग मोर ऑर्डर्स, है ना। तो फर्म्स कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? डिमांड जब ज़्यादा है सप्लाई से, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, है ना। विल हायर मोर वर्कर्स, ज़्यादा वर्कर्स चाहिए होंगे तो वर्कर्स ज़्यादा हायर होंगे, ठीक है। और ऐसे ही मेरा आउटपुट इंक्रीज होगा। जब मेरा आउटपुट इंक्रीज होगा दिस मीन्स कि मेरा, जब मैं वर्कर ज़्यादा हायर कर रही हूँ विच मीन्स माई अनएम्प्लॉयमेंट इज डिक्रीजिंग, राइट। सो जब मेरा आउटपुट इवेंचुअली इंक्रीज होगा, और हम आई एस एल एम कर्व कंसिडर करते हैं, यहाँ पे वापस मैं ड्रॉ करूँगी, ये मेरा x axis पे I have my income or my output, here I have my interest rate, and this is my IS curve, this is my IS curve, this was my LM curve. So what has happened to my IS curve? My IS curve will shift right,
वाई विल इट शिफ्ट राइट, आई एस डैश पे क्यों जाएगा, वाई विल इट शिफ्ट राइट, क्योंकि मेरा आउटपुट इंक्रीज हुआ है ड्यू टू राइज इन एक्सपोर्ट डिमांड, ठीक है। सो माई आई एस विल शिफ्ट टू द राइट। अब जब आई एस राइट पे शिफ्ट हुआ, देखते हैं यहाँ पे देखो मेरा आउटपुट इंक्रीज हुआ है। इनिशियली मेरा आउटपुट यहाँ पे था वाई पे, नाउ माई आउटपुट इज एट वाई डैश, ठीक है। तो मेरा आउटपुट इंक्रीज हुआ है विच मीन्स दैट मेरा एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हुआ है in my economy also. Do you understand this? Initially we saw a rise in export demand, which means foreign demand बढ़ी थी, but eventually it leads to increase in my domestic demand also. मेरे लोग भी, माई पीपल ऑल्सो स्टार्ट डिमांडिंग मोर, क्योंकि हमारी आउटपुट इंक्रीज हुई है, हमारे वर्कर्स को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिली है, उनको इनकम मिलेगी, तो इवेंचुअली एडी एग्रीगेट डिमांड इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज। सो हमारा जीडीपी इज गोइंग टू राइज, जीडीपी हमारा भी इंक्रीज होगा, हमारा जीडीपी इंक्रीज होगा, आर इनकम इज गोइंग टू राइज। बट ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ था, इंक्रीज इन फॉरेन डिमांड से, राइट। सो हमारा इनकम भी अगर इंक्रीज होगा तो हम लोग ज़्यादा मनी डिमांड करेंगे, मनी डिमांड इज गोइंग टू इंक्रीज। वाई सो, क्योंकि हमारी इनकम बढ़ी है तो वील डिमांड मोर मनी टू हैव इन आवर हैंड्स, राइट। सो मनी डिमांड यहाँ से इंक्रीज होगी, पीपल विल मेक मोर ट्रांजेक्शन, फर्म ज़्यादा बोरो करेंगी, है ना, तो मनी डिमांड भी इंक्रीज होगी। जब मनी डिमांड इंक्रीज होती है और लेट्स से मैं मेरा यहाँ पे देखो एल एम कर्व डील्स विद द मनी मार्केट, राइट। सो माई मनी डिमांड हैज़ इंक्रीज्ड एंड ऑल्सो व्हेन माई आई एस कर्व शिफ्टेड टू द राइट, यहाँ पे इवेंचुअली माई इंटरेस्ट रेट वॉज दिस, एंड व्हेन आई एस कर्व शिफ्टेड टू द राइट, ये हो गया मेरा इंटरेस्ट रेट, मेरा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सो इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट जो है वो मेरा इंक्रीज हुआ है। तो इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज होने से वी नो कि जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ तो आई हैड कैपिटल इनफ्लो, राइट, आई हैड कैपिटल इनफ्लो, और उसकी वजह से मेरा एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट हुआ है, ठीक है। सो माई रुपी अप्रिशिएट्स, बाय नाउ वी आर वेरी थरो विद दिस, सो माई रुपी अप्रिशिएट्स हियर। सो अप्रिसिएशन के चेंज होने से मतलब रुपी अप्रिसिएशन की वजह से, ठीक है, क्योंकि रुपी अप्रिशिएट हुआ है, ठीक है। सो दिस चेंजेस, आई विल राइट योर, दिस चेंजेस इंटरनेशनल, दिस चेंजेस इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। इससे क्या चेंज होता है, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। अब कैसे कैसे बोल सकते हैं हम ये, इससे जब मेरी रुपी अप्रिशिएट हुई, देखो मेरा सबसे पहले इंक्रीज इन एक्सपोर्ट डिमांड हुआ था, मतलब अदर कंट्रीज वांटेड माय गुड्स, दे वांटेड मी टू एक्सपोर्ट, राइट। ये होते 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 हम यहाँ पे आए कि मेरा आई एस राइट शिफ्ट होगा, ओके। आई एस राइट शिफ्ट हुआ, हमको ये भी पता चल गया कि मेरा इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज क्योंकि मेरा आई एस राइट शिफ्ट हुआ है। जब मेरा आई एस राइट शिफ्ट हुआ उसकी वजह से मेरी रुपी अप्रिशिएट हो गई। जब मेरी रुपी अप्रिशिएट हो जाएगी तो दिस इज गोइंग टू हर्ट माई एक्सपोर्ट्स एंड वी नो वाई, ठीक है, दिस इज गोइंग टू हर्ट माई एक्सपोर्ट्स एंड वी नो वाई, क्योंकि पहले इंडियन गुड्स चीप थे बट अप्रिसिएशन के बाद दे बिकम एक्सपेंसिव, है ना, दे बिकम एक्सपेंसिव। सो अप्रिसिएशन इवेंचुअली हर्ट्स माई एक्सपोर्ट्स, राइट। सो वट वी कैन सी इज कि इंडिया जो है, इंडियन एक्सपोर्ट्स जो हैं दे विल बिकम लेस अट्रैक्टिव फॉर फॉरनर्स, क्योंकि ऑफ कोर्स दे आर एक्सपेंसिव, सो नो बडी वुड वॉन्ट टू बाय फ्रॉम अस, दे विल बिकम लेस अट्रैक्टिव, राइट। और क्योंकि हमारी इनकम इंक्रीज हुई है, मैंने आपको बताया ना, देखो जीडीपी इंक्रीज हुआ कंट्री का, हमारी इनकम इंक्रीज हुई। हमने ये पहले भी देखा है कि जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो इम्पोर्ट्स बढ़ जाती हैं कंट्री की, क्योंकि हमारी इनकम इंक्रीज हुई है मतलब वी आर गोइंग टू इम्पोर्ट, तो हमारी इम्पोर्ट भी बढ़ गई सेम टाइम पे, क्योंकि फॉरेन गुड्स हमारे लिए चीप हैं, क्योंकि हमारी करेंसी तो अप्रिशिएट हुई है तो हमारे इम्पोर्ट्स बढ़ गए, ठीक है। इसकी वजह से क्योंकि मेरे एक्सपोर्ट्स इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं कि वो लेस अट्रैक्टिव हो गए, मेरे इम्पोर्ट्स बढ़ गए, दिस इज गोइंग टू हर्ट माई नेट एक्सपोर्ट्स अलॉट, तो मेरा नेट एक्सपोर्ट्स वुड फॉल, क्योंकि मेरे एक्सपोर्ट्स देव डिक्लाइंड एंड माई इम्पोर्ट्स आर राइजिंग, so my net exports starts falling, right। तो IS curve eventually right shift हुआ था, but what will we see, what will we notice कि क्योंकि मेरा net export fall हो रहा है, my IS curve would fall back and come here, my IS curve is going to come back and just become this IS curve again, so my IS curve is going to come back, IS वापस से लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। तो जो राइट शिफ्ट हमने देखा था आई एस कर्व में, वो वापस से हम देखेंगे कि आई एस कर्व विल शिफ्ट बैक लेफ्ट, एंड जब तक हमारा डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा रहेगा, हमारा आई एस कर्व विल कीप शिफ्टिंग लेफ्ट
IS curve will keep shifting left. So eventually appreciation इतना strong हो जाता है कि हमारे exports जो हैं, हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा फॉल हो जाते हैं और हमारे इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा नेट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा फॉल हो जाता है। एंड दिस लोअर्स आर एग्रीगेट डिमांड जो इनिशियली तो इंक्रीज हुआ था। ठीक है, सो फाइनल इक्विलिब्रियम वापस से मेरा किस पॉइंट पे होगा? फाइनल इक्विलिब्रियम मेरा वापस से इस ई पॉइंट पे ही होगा, बिकॉज माई आई एस कर्व विल कम बैक and just become this line again, this line again. So my final equilibrium is again at point E only. My final equilibrium is again at point E only. So what do we see, what do we notice? Start तो मेरा हुआ था कि export demand मेरी बढ़ी थी, है ना? But what we notice here is कि despite the initial export boom जो हमको दिखा, हमें सबसे पहले export boom दिखा, बट द शॉकिंग रिजल्ट इज कि इक्विलिब्रियम आउटपुट डज नॉट परमानेंटली इंक्रीज। जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे पूछा था कि इज माई, क्योंकि ये जो शॉक हमें मिला था, जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग इंक्रीज की थी इन दिस एग्जाम्पल, और हमारे लिए जो रियल डिमांड शॉक था, तो आर क्वेश्चन वॉज इज आउटपुट गोइंग टू इंक्रीज परमानेंटली? बट वी हैव एन आंसर योर दैट इवन दो एक्सपोर्ट बूम हुआ, आर आउटपुट डिड नॉट इंक्रीज परमानेंटली, हमारा आउटपुट परमानेंटली इंक्रीज नहीं हुआ, राइट? सो हमारे पास फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट था, वी हैड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, वी हैड परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी, बट व्हाट डू वी सी कि एक्सचेंज रेट अप्रिसिएशन की वजह से, मैं यहाँ लिखती हूँ, एक्सचेंज रेट अप्रिसिएशन completely offsets, completely offsets export increase। ठीक है, एक्सचेंज रेट अप्रिसिएशन ने क्या किया? कंप्लीटली ऑफसेट कर दिया एक्सचेंज एक्सपोर्ट के इंक्रीज को। एक्सपोर्ट इंक्रीज से मेरा जीडीपी इंक्रीज हुआ था, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हुआ था, उसी की वजह से मेरा एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट हुआ, एंड इट कंप्लीटली ऑफसेट्स माय एक्सपोर्ट इंक्रीज, राइट? सो वी कैन सी कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी के सिनेरियो में, इवन दो हमारे पास पहले एक्सपोर्ट इंक्रीज था, बट हमारा करेंसी अप्रिसिएशन हैज कम्प्लीटली ऑफसेट, राइट? सो वी कैन समराइज दिस एंटायर प्रोसेस, और हम सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे ये आ सकते हैं कि जब हमारे पास फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी होता है, देन द रियल डिमांड डिस्टर्बेंसेस जो हमने देखे थे कि रियल डिमांड डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं, सो रियल डिमांड डिस्टर्बेंसेस डू नॉट, डू नॉट, ठीक है, डू नॉट permanently affect, all right, they do not permanently affect equilibrium output, they do not permanently affect equilibrium output, equilibrium output increase hoga but it will come back to its place, right? So this is, that is something that's very very important, right? So हमें एक हमें ना यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी पता चली which is also called as crowding out. सो व्हाट इज एग्जैक्टली क्राउडिंग आउट? दिस इज क्राउडिंग आउट क्योंकि फिजिकल एक्सपेंशन हुआ सबसे पहले, फिजिकल एक्सपेंशन, माई नेट एक्सपोर्ट्स इंक्रीज्ड, फिजिकल एक्सपेंशन हुआ था क्योंकि मेरा एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुआ था, बट फिजिकल एक्सपेंशन गेट्स कंप्लीटली क्राउडेड आउट, गेट्स कंप्लीटली क्राउडेड आउट, क्योंकि हम वापस से उसी लेवल ऑफ आउटपुट पे पहुंच गए जहाँ पे हम पहले थे। सो दिस क्राउडिंग आउट इज डिफरेंट फ्रॉम क्लोज्ड इकोनॉमी क्राउडिंग आउट, ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे हम ओपन इकोनॉमी कंसिडर कर रहे हैं। बट अगर हमें समझना हो कि हमारे साथ हुआ क्या है, तो अप्रिसिएशन की वजह से हमारे नेट एक्सपोर्ट डिक्रीज हो गए एंड माई नेट एक्सपोर्ट्स फॉल, जिसकी वजह से क्राउडिंग आउट हो जाती है, ठीक है? सो अगर हमें कोई पूछे कि क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी क्राउडिंग आउट में क्या डिफरेंस है, सो वी कैन जस्ट से कि क्लोज्ड इकोनॉमी में, क्लोज्ड इकोनॉमी में भी क्राउडिंग आउट होता है। क्लोज्ड इकोनॉमी में हाई अगर मेरा इंटरेस्ट रेट होगा ना, अगर मेरा हाई इंटरेस्ट रेट होगा क्लोज्ड इकोनॉमी में, तो इसकी वजह से मेरा इन्वेस्टमेंट जो है ना वो रिड्यूस होता है, ठीक है? बट ओपन इकोनॉमी में क्या होता है? ओपन इकोनॉमी में ये होता है कि हाई, अगर मेरा एक्सचेंज हाई इंटरेस्ट रेट था, मेरा कैपिटल इनफ्लो हुआ, उसकी वजह से मेरा एक्सचेंज रेट अप्रिसिएशन हुआ, एंड एक्सचेंज रेट अप्रिसिएशन की वजह से मेरा नेट एक्सपोर्ट जो है वो रिड्यूस हुआ है। तो मुझे डिफरेंस समझ में आ गया कि क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी के क्राउडिंग आउट में क्या डिफरेंस है। बट वी नाउ नो दैट
अगर मेरे पास फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है और परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है, देन वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ क्राउडिंग आउट. ठीक है, वी हैव अंडरस्टूड दिस वेरी वेल. If we finally come to draw a comparison between fixed exchange rate एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, तो हम कैसे इसका कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे. ठीक है, दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. तो अगर वी हैव टू कंपेयर बोथ ऑफ दीज, तो हम ये देख सकते हैं कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में मेरे पास क्या था. जब मेरे पास फिक्स एक्सचेंज रेट था, देन माई फिजिकल पॉलिसी वॉज एक्सट्रीमली powerful. My fiscal policy was extremely powerful, right? क्योंकि central bank supported it through monetary expansion. And under flexible exchange rate, मेरा fiscal policy जो है, fiscal policy, this becomes ineffective. Fiscal policy becomes ineffective for changing output क्योंकि exchange rate appreciation हो जाता है. ठीक है, so this is a comparison that I can draw. And in fixed exchange rate, my monetary policy was ineffective. Monetary policy मेरा बहुत ज़्यादा ineffective था, because I can't pursue an independent monetary policy. But in flexible exchange rate, I can do that, and my monetary policy is effective. My monetary policy is effective. So all of us are going to remember this table and then relate it with the chapter. तो हमें कोई भी doubt नहीं होगा, right? So this is something that we all need to understand about the Mundell-Fleming model. कि Mundell-Fleming model में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में फिजिकल पॉलिसी बहुत ज़्यादा हाईली इफेक्टिव होती है, बट वी कांट परस्यू एन इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी. एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में फिजिकल पॉलिसी इज इनइफेक्टिव ड्यू टू exchange rate appreciation, and monetary policy is completely effective. Okay.